induced EMF. Means the induced EMF produced by the coil itself, it is known as your self-induced EMF. मीन्स क्या हम बोले थे, यहाँ पे डायग्राम करके दिखा दे रहे हैं तुम लोग. This is, I have a coil, right? This is my coil. Yes. And in the coil, I am giving a voltage of V. Yes. And whenever I am giving a voltage of V, what will happen? The current of I will produce. Yes or no? Yes, Okay. sir. When the I will produce, voltage is given, Flux. I is produced, then it will give a flux. Then And EMF flux generated. and flux will produce a EMF. EMF. This EMF. EMF generation is known as your self-induced EMF. Just Self-induced. in Self-induced means if somebody will ask you, you can say the EMF generated by the coil itself, or you can say that the EMF generated in a coil whenever there is a voltage is flowing through that coil, and due to that there will be a current flowing through the coil. Due to the current there will be flux, and the induced EMF by the coil itself is known as your induced self-induced EMF. Clear? yes, And sir. Yes, sir. self-induced EMF is this. Then we have discussed the mutual induced EMF. Mutual means what is that? दो coil होगा. The essay. Mutual induced EMF means the EMF induced in the coil number 2 due to the current flowing in the coil number First. first One. coil number 1, right? That is known as your mutual inductance. Somebody will ask you, you can say that the induced EMF produced in the coil number 2 due to the current flowing in the coil number 1 is known as your mutual inductance. So we'll be doing that. हम यहाँ पे देखेंगे कैसे हो रहा है. This is one coil, and this is the other coil I have, and we are discussing which induced EMF, static. Okay, nothing is rotating here. Ah, so I have given a voltage of V1. Look at it. I have given a voltage of V1. There will be a current of I1, and due to I1, there will be a flux of phi1, and the flux linked here is your phi2. Due to the flux linked phi2, there is a induced EMF of E2, E2. E2, E2. and due to that there is a current of I2. है कि नहीं? हाँ, तो Yes, ऐसे sir. भी लिख सकते हैं. V1 will give you I1 will give you phi 1, हाँ, हाँ, will give you phi, लिंक होगा Two. phi Phi 1 2. to phi 1 to means मतलब क्या है? 1 से 2. Two को 1 से link 2. हो रहा है. हाँ, 1 से 2 को लिंक हो रहा है, and that is going to give a flux of phi 2, and it is going to give a EMF of E2, and that is going to give a current of I2, I2. and I2. the current of I2 will give a voltage of What is a B2? V2. V2. खत्म. यही हो रहा है ट्रांसफार्मर में. यहाँ पे हम V2 निकाल रहे हैं. Okay, right? So this is the, and the induced EMF is known as here in this case is your mutual induced EMF. Okay, right? Yes, sir. Yes, look at it. Self-induced, and that is coming to that there will be the, there will be another term which is called that the self-inductance. Right? Inductance means anyone? This opposes the rate of change of current. यस, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट. जहां पे करंट चेंज हो रहा है वहीं पे इंडक्शन आएगा. तो यहाँ पे हम एसी दे रहे हैं कि नहीं, एसी देने से एसी चेंज होता है, तो इसी में तो इंडक्टेंस आएगा. ठीक है ना? तो देयर विल बी टू टाइप ऑफ इंडक्टेंस. एक है सेल्फ इंडक्टेंस, एंड दूसरा है म्यूचुअल Opposite. म्यूचुअल इंडक्टेंस. ठीक है? Inductance. Two inductance. One is your self-inductance, other is your mutual inductance. Clear? So what is self-inductance? Self-inductance means the inductance produced in the coil itself
is known as your self inductance. Means यहाँ पे हमने जो coil लिखा है कि नहीं, एक ही coil है कि नहीं, and there will be a voltage, and due to that there will be a flow of current, and as this is a AC is flowing through a coil, and there will be a change of rate of change of current, so there will be some inductance which is coming here. That inductance is known as your क्या क्या है, द Self इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस, Self inductance. इसको कहते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। होगा कि नहीं, देखो मैं यहाँ पे एसी दे रहा हूँ और एसी कॉइल के अंदर जा रहा है, और एसी करंट तो चेंज होता है ना उस टाइम, इट इज चेंजिंग विद द टाइम, सो दैट्स व्हाई देयर विल बी सम ऑपोजिशन, एंड दैट ऑपोजिशन इज नोन एज योर सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है, तो इफ somebody will ask you, tell me what is self inductance, means it is the, what is that, what is you say? Hmm. It is the inductance produced by the coil itself. Ah, yes, very good. It is the inductance produced by the coil itself is known as your self-inductance. If somebody will ask you what is your inductance, then you say it is the opposition, property of a What the material by virtue of which it opposes the rate of change of current, the that is flow your of current. inductance. And self-inductance means the inductance offered by the coil itself is known as your self-inductance, and we can make the unit is, what is that, Henry. Henry, Henry, Henry or millihenry, and which is donated denoted by L. कैसे उसको लिखते हैं, denoted by L, capital L. If capital L is given, then you might be understood, you can understood that it is your nothing but your self inductance. Clear? Okay, right? Next I am talking to you regarding that, and look at it, self inductance। तुम लोग को अगर मैं एनोलॉजी करूंगा, मींस एनोलॉजी का मतलब क्या है, दूसरों से कंपेयर करूंगा, तो मैं जैसे तुम लोग को कंपेयर किया, करंट इन इलेक्ट्रिक सर्किट इज डैश इन मैग्नेटिक सर्किट, Flux in magnetic फ्लक्स इन मैग्नेटिक Where सर्किट। जैसे मैंने किया यहाँ पे रेजिस्टेंस इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या था, reluctance. रिलक्टेंस था, रिलक्टेंस था। ऐसे में थोड़ा आगे जाऊंगा, मैं लिखूंगा यहाँ पे वोल्टेज, तो मैग्नेटिक जो मैकेनिक्स में ये क्या होगा वोल्टेज को, क्या है, मैग्नेटिक सर्किट में नहीं पूछ रहा हूँ, मैकेनिकल में पूछ रहा हूँ, मैकेनिकल में, potential difference. मैकेनिकल में देखो, इलेक्ट्रिकल में रेजिस्टेंस, मैग्नेटिक सर्किट में रिलक्टेंस, मैकेनिकल में क्या होगा वो, व्हाट इज अपोजिट, EMF. मैकेनिकल में फ्रिक्शन, आई डोंट Yes, नो, sir. Friction. फ्रिक्शन, इट इज योर फ्रिक्शन, Yes, sir. Friction. फ्रिक्शन अपोजेस नो, द फ्लो, मूवमेंट हो रहा है, तो यहाँ का सतह और जो फ्रिक्शन, it is opposing, that's why it is your friction. Similarly, if it is voltage in electrical, then it is magnetic field strength, Ni in magnetic, then in mechanical it is your force, कि नहीं है कि नहीं? Yes, sir. Similarly, Yes, sir. similarly, if it is inductance, in magnetic circuit or in electrical circuit, it is self inductance is similar to Capital I. क्या है, Inertia. इनर्शिया। व्हाट इज इनर्शिया, पढ़े हो हम लोग, इनर्शिया जानते हैं Friction में आता है. क्या है, कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज योर इनर्शिया? Remain इनर्शिया, unchanged. The property to remain unchanged. हाँ, means if this is a, if suppose look at it, this is a book I place on the table, if I want to move the book, what will happen, what to what force I have to give, I have to give the force
to overcome the friction and the inertia of this. Am I? हाँ इनर्शिया मीन्स ये जो बॉडी का बुक का वेट है उसको ओवरकम करना है, फिर फ्रिक्शन को ओवरकम करना है, तब जाके ये बॉडी मूवमेंट होगा कि नहीं? यस और नो? Yes, sir. सो दैट इज योर inertia of motion, right? Similarly, if we'll compare that inertia of motion in electrical, that is known as your self-inductance, right? Sometimes analogically called electrical. What is that? Inertia. If somebody will ask you, can you tell me what is an electrical inertia? तो तुम लोग को पहले इनर्शिया पता होना चाहिए, है कि नहीं? हाँ. Inertia means it is not going to give us to flow. Moment of inertia means inertia of motion means we have to overcome. Right. Similarly, if somebody will ask you what is your inertia in electrical inertia, it is your self-inductance. Right? Okay. Next, how this is your L is known as your self-inductance. Right? And how to define self-inductance? There are three ways to define the self-inductance. Yes? Right? Self-inductance तुम लोग को पता हो गया? What is self-inductance? It is the inductance produced by the coil itself. It is not your self-inductance, and we are going to find out the self-inductance or coefficient of self-inductance in three different ways. What is coefficient? Anyone? Coefficient क्या है? हाँ? सो गए हो क्या तुम लोग? कोएफिशिएंट क्या है? बढ़िया है. Multiplier factor. Yes, very good. It is the multiplier factor. Suppose I will write it here. हाँ, यहाँ पे मैं x square लिखता हूँ, तो यहाँ पे 5x square लिखता हूँ, तो which is this? 5 is your coefficient. Yes or no? This is your coefficient. So this L के साथ जो भी रहेगा उसको हम कहेंगे coefficient of self inductance. And coefficient of self inductance कैसे निकालते हैं? The first method for L, first method of L, it is self inductance is defined as Weber turn per ampere. Weber turn पर एम्पियर. वेबर का यूनिट क्या है? वेबर किसका यूनिट है? फ्लक्स. फ्लक्स. तो हम लिख देंगे फ्लक्स. हाँ. टर्न किसका है? एन. एन. Number of turns in पर 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 हाँ, करंट. पर current. एम्पियर. आई. आई. यस, यहाँ पे गलत दिया है कि नहीं? हाँ, तो हम अभी कोई पूछेगा भाई एल क्या है? व्हाट इज योर एल? एल इज योर एन 5 बाई I. बाय आई. I. if somebody asks you what is your self inductance, it is your n phi by, ऐसे याद रखना, phi n नहीं, n phi by I, तो इजीली हमें याद रहेगा. तो क्या लिखेंगे हम? यहाँ पे लिखेंगे n phi by I. मीन्स अब कोई तुम लोग कोई क्वेश्चन पूछेगा, भाई मेरे पास एक 500 टन का कॉइल है और वहां पे मैं हाँ, और मैं 5 में फ्लक्स दे रहा हूँ और वहां पे 5 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, तो कितना सेल्फ इंडक्टेंस होगा? कितना होगा? हम मल्टीप्लाई कर देंगे. 500 हमारा दिया है नंबर ऑफ टर्न और 5 दिया है हमारा फ्लक्स, और हमने वहां पे कितना करंट भेजा? 5 एम्पियर का. तो काट दो, ये आ जाएगा कितना? 100 फ्लक्स. फ्लक्स का जो वैल्यू है जो आएगा उसको हम बोलेंगे दिस मच हेनरी. ठीक है? हाउ टू कैलकुलेट सेल्फ इंडक्टेंस? फर्स्ट मेथड,
It is your L is equal to n phi by I. I. खत्म हो गया फर्स्ट मेथड। ठीक है, ऐसे तो मैं प्रॉब्लम दिया है देखो यहाँ पे कि नहीं। दिस इज देखो डीसी फील्ड दिया है इतना का, और रेजिस्टेंस दे दिया है, और इतना वोल्टेज दे दिया है, फ्लक्स लिंकेज दे दिया है। हाँ, तो और कितना सेल्फ इंडक्टेंस होगा और कितना स्टोर होगा। यहाँ पे वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस क्या आ गया, करंट कि नहीं। Current. और यहाँ पे फ्लक्स दे दिया है, नंबर ऑफ टर्न दे दिया है, हम फार्मूला डाल दिए। हाँ, एन फाइव बाई आई, तो हमारा आ गया एल। और हम जानते हैं द एनर्जी स्टोर अक्रॉस ए कैपेसिटर इज, मैं बोला था तुम लोगों को कितना, हाफ हाफ एल आई स्क्वायर। हाफ एल आई स्क्वायर हाँ, डाल दिए। जो आ गया एनर्जी को तुमने लिख दिया जूल। खत्म कि नहीं। यस। Yes, sir. Next, Yes, sir. next we'll go for another method, that is your second method for L. So second method for L हम ये फॉर्मूला जानते हैं कि नहीं, yes or no। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. हम यस सर। जानते हैं it is your MMF by क्या, ये क्या है, Yes, sir. Reluctance. yes very good, reluctance। हाँ, फ्लक्स इज इक्वल टू MMF बाय रिलक्टेंस, यही दिया है कि नहीं, है कि नहीं। और हम क्या Yes, sir. करेंगे, अपने हिसाब से इसको थोड़ा अरेंज कर देंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ पे फाई है, और ऊपर क्या, हमें एन चाहिए, तो इसको उसी हिसाब से लिख दो। किस हिसाब से, एल के हिसाब से, एन फाई बाई आई। ठीक है, लिख सकते हैं कि नहीं। हाँ, यहाँ पे हमने एल Yes, sir. मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे एक एन मल्टीप्लाई किया, फिर ये जो आई है इसको हमने मिटा दिया, ये आई को कहाँ पे रखा, नीचे रख दिया। हो गया कि नहीं मेरा, इस ये हो गया Yes, क्या, sir. Yes, एल sir. स्क्वायर, तो ये हो गया एन स्क्वायर, और ये एल हाँ बाई म्यू जीरो म्यू आर इंटू ए। खत्म। यस। Yes, sir. Yes, sir. और ये सब नीचे है, तो ये ऊपर चला गया, तो एल क्या आया मेरा, एल इज इक्वल टू म्यू जीरो ए एन स्क्वायर बाई एल। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे तुम लोग जानते हो म्यू जीरो म्यू आर का वैल्यू, ए क्या है, Mu ए क्या है, A ए क्या है, ampere. एरिया। एरिया। भूल गए हो तुम लोग, Area. तुमको ये लगा है अभी, भूख लग रहा है, इसलिए तुम लोग थोड़ा ओके। ए एन स्क्वायर बाई एन, तो एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न, एल क्या है, लेंथ ऑफ द मैग्नेटिक पाथ। तो आ गया हमारा दूसरा मेथड। ये किसके लिए हम यूज करते हैं, सोलिनॉइड के लिए। ओके, जो कॉइल होता है उसके यूज करते हैं। यहाँ पे भी एक प्रॉब्लम दिया है वो कि नहीं, देखो ये रिंग दे दिया है, उसका मीन डायमीटर दे दिया, मेड ऑफ स्क्वायर रिंग ऑफ इतना क्रॉस सेक्शन एरिया दे दिया, हाँ एन दे दिया है, और या वायर का क्रॉस, कैलकुलेट द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल, म्यू का वैल्यू दे दिया। तो हम लोग फार्मूला डाल दिए, म्यू जीरो म्यू आर ए एन स्क्वायर बाई एल, उसी हिसाब से तुम लोग का आंसर भी आ जाएगा। ठीक है, क्लियर। अब यस क्या, सर। तीसरा मेथड को हम जाएंगे। तीसरा मेथड हम क्या पढ़े हैं, तीसरा मेथड है दिस। हम लोग भी क्या जानते हैं, E इज इक्वल टू, हमने जानता है माइनस क्या, डी फाइव बाई
पढ़े कि नहीं? फाइव बाई डी टी। डी फाइव बाई डी टी पढ़े थे। हाँ, तो वही है, देखो ये L इज इक्वल टू, हाँ, एन फाइव बाई, ये यहाँ पे इन लोग ने क्या किया, एन फाइव को सेपरेट यहाँ पे रख दिया, अलग, एन फाइव इधर लेके आ गए, और यहाँ पे एल आई है, ठीक है, समझ रहे हो? मैं यहाँ Yes, पे sir. करके दिखा दूं, देखो ये हो गया हमारा फॉर्मूला, L इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखा है L इज इक्वल टू एन फाइव बाई आई। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एल आई लिख दूंगा, और यहाँ पे क्या लिखूंगा, एन फाइव लिख दूंगा, ठीक है, हो गया। और हम यहाँ पे एक माइनस दे देंगे, यहाँ पे एक माइनस साइन दे देंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये दोनों साइड को डिफरेंशिएट करेंगे। क्या करेंगे, दोनों साइड को डिफरेंशिएट। Difference. तो यहाँ पे डिफरेंशिएट किए, और ये पूरा को भी डिफरेंशिएट किए। यहाँ पे डिफरेंशिएट करने से एल है क्या, एल है तुम्हारा कांस्टेंट, ये आ जाएगा क्या, माइनस, हाँ, डी आई बाई, क्या आ जाएगा, Di by dt. डी आई बाई डी टी आ गया। हाँ, यहाँ पे क्या आएगा, माइनस, एन तो कांस्टेंट है, एन निकाल दिए, तो यहाँ पे क्या आएगा, डी फाइव बाई By dt. डी फाइव बाई डी टी आ गया। तो डी फाइव बाई डी टी, देख रहे हो? हाँ, और हम क्या जानते हैं, हम सेल्फ इंडक्टेंस ईएमएफ जो इंड्यूस हो रहा है हम जानते हैं, ये क्या जानते हैं, ये जानते हैं कि नहीं, ई इज इक्वल टू एन इंटू डी फाइव बाई डी टी। तो यहाँ पे हम क्या डालेंगे, बोलो, ये पूरा जगह में क्या डालें, व्हाट आई विल सब्स्टिट्यूट, ये मैं L. ई ई ई ई सब्स्टिट्यूट करेंगे कि नहीं? Yes. So look at it, I have substituted E, then what I got EL is equal to, क्या लिखेंगे, माइनस एल डी आई बाई क्या, डी dt. टी। डी आई बाई dt। डी टी, डी आई बाई डी टी, यहीं से भी हम L निकाल सकते हैं। The L is equal to induced EMF is equal to L into di by dt भी लिख सकते हैं। अंडरस्टूड? कैसे निकाल के आया? तो हमारा 3 मेथड हो गया है, राइट, हाउ टू फाइंड आउट L। फर्स्ट मेथड हमने यहाँ पे डायरेक्ट निकाल दिया, हमारा क्या, L इज इक्वल टू एन फाइव बाई, यहाँ पे एन फाइव बाई आई। दूसरा मेथड हमने यहाँ पे निकाल दिया, इट इज योर क्या, L इज इक्वल टू यहाँ पे म्यू जीरो, म्यू ए एन स्क्वायर बाई एल। और तीसरा मेथड में हम निकाल दिया E इज इक्वल टू माइनस एल इंटू डी आई बाई डी टी। ऑल दोज मेथड्स आर क्लियर, ठीक है? Yes, sir. यस सर। और इसके ऊपर बहुत सारा प्रॉब्लम दिया है, यू कैन गो थ्रू इजी प्रॉब्लम्स, लुक एट इट। यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, कॉइल का कितना 500 टर्न मार दिया, फ्लक्स दे दिया 0.101 वेबर दे दिया, करंट कितना जा रहा है 10 एम्पियर, मोटिव फोर्स ई कैलकुलेट करने के लिए बोला। पहले हमको क्या बोला, एल कैलकुलेट करने के लिए। तो एल का फॉर्मूला हम जानते हैं, एन फाइव बाई I. आई, एन फाइव बाई आई। तो हमारे पास सब है, एन है हमारा 150, और फाइव है 0.01 वेबर, और ए है हमारा 10, तो आ गया हमारा क्या, एल आ गया कि नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन वो पूछा है कि भाई व्हाट इज सेल्फ इंडक्टेंस। तो अभी हमने सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला लिखा है, इट इज ई एल इज इक्वल डी आई बाई डी टी, मीन्स कितना, डी आई बाई डी टी, डी आई बाई डी टी। हाँ, इनिशियली आई कितना था, इनिशियली आई कितना था 10, 10 फिर एम्पियर। वो फिर भी चेंज हुआ 10, तो -10, तो total current is your di is equal to 20. Look at it, when carrying a current of 10, if this current is uniformly reversed, means क्या हो रहा है,
मान लो यहाँ पे 10 एम्पियर करंट जा रहा था और वो क्या हुआ, 10 एम्पियर करंट ऐसे क्या हुआ, रिवर्स हुआ। ये 10 एम्पियर था, ये रिवर्स हुआ तो कितना रिवर्स हुआ 10 एम्पियर। तो यहाँ पे 10 था और यहाँ पे 10 आया तो 20 एम्पियर आ गया। कितने टाइम में? 0.01 seconds. 0.0 तो डी आई हो गया 20 एंड डी टी हो गया 0.1। सो वी नो द फॉर्मूला एल इंटू डी आई बाई डी टी। सो आ गया तुम लोग का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। दिस इज द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम कुछ नहीं है मगर तुम लोग को ये फॉर्मूला सब याद रखना पड़ेगा। अगर कोई पूछेगा भाई एल कितना है तो एल तुम लोग को ऐसे याद करेगा, एन फाइव बाई आई याद रखना है। अगर कोई पूछेगा भाई एल दूसरा, तुम लोग को दूसरा डाटा देगा तो एल कैसे निकालोगे, ए और एन ऐसे भी हम लोग निकाल सकते हैं। तीसरा कोई पूछेगा तो ऐसे भी हम निकाल सकते हैं, माइनस एल डी आई बाई डी टी। ठीक है नहीं, है कि नहीं? हाँ, Yes, sir. Yes, sir. और ऐसे भी हम निकाल सकते हैं E इज इक्वल टू एन डी फाइव बाई, कि नहीं, एन फाइव बाई निकालेंगे डी टी। ये भी हम कर सकते हैं। तो ये सब याद रखना पड़ेगा हम। ये देख रहे हो, इसको याद रखना पड़ेगा, इसको याद रखना पड़ेगा, और यहाँ पे ये जो है इसको याद रखना पड़ेगा। ये याद रखो तो नथिंग इज देयर, प्रॉब्लम्स आर वेरी इजी, राइट? ठीक है, ओके। Yes, sir. Yes, sir. Yes, नेक्स्ट, sir. अब हो गया हमारा सेल्फ इंडक्टेंस के बारे में हम पढ़ लिए। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे दूसरा चीज है म्यूचुअल इंडक्टेंस। अगर कोई पूछा व्हाट इज द एनर्जी स्टोर इन ए इंडक्टर, हाफ एल आई। I square. मैं पूछूंगा व्हाट इज द एनर्जी डिसिपेटेड इन ए इंडक्टर, क्या करो? व्हाट इज द एनर्जी लॉस इन ए इंडक्टर, क्या करोगे? Energy loss, energy Zero. dissipation, zero, because that energy in an inductor, energy stores in which field? कौन सा फील्ड में स्टोर होता है? कौन सा सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं अभी? कौन सा टॉपिक? Magnetic induction. Magnetic induction. तो Magnetic. the energy stored in which field? Magnetic. Magnetic. हाँ, energy stored in a magnet. Capacitor में which field? Electric field. Electro? Electrostatic. Yes, electrostatic. What is the formula? Half epsilon naught. Yeah, half CB square. आप सीरीज, ठीक है। हाँ, और यूनिट क्या है? Joule. जूल। यूनिट एनर्जी इज जूल, राइट? क्लियर? अब क्या पढ़ेंगे हम? म्यूचुअल इंडक्टेंस पढ़ेंगे। तो पहले हम जानते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या है। जान जाएंगे। लुक एट इट, आई हैव टू कॉइल, दिस इज ए कॉइल, दिस इज एन अनदर कॉइल। हाँ, मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ द इंडक्टेंस प्रोड्यूस्ड इन द सेकेंड कॉइल, द इंडक्टेंस प्रोड्यूस्ड इन द सेकेंड कॉइल due to current flows in the first coil is known as your म्यूचुअल Mutual inductance. इंडक्टेंस। मतलब whenever, यहाँ पे देखो क्या बोला है, whenever there is a change in the current, ये मान लो मेरा कॉइल A है, ये मान लो मेरा कॉइल B है। so whenever there is a change in the current in the coil A, तो कॉइल A में करंट चेंज हो रहा है कैसे? हम कौन सा करंट दे रहे हैं? AC. AC current. तो AC तो चेंज होता है कि नहीं? so Yes, sir. whenever the coil current changes in the coil A, accompanied by a production of mutual induced EMF in the coil B,
तो यहाँ पे चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे फ्लक्स होगा, यहाँ पे फ्लक्स लिंक होगा 512 होके लिंक होगा, लिंक होने से यहाँ पे एक इंडक्शन होगा, उसको कहेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस। क्या कहेंगे? म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक है, तो मैं अभी पूछूंगा व्हाट इज एनीवन? अरे सो गए हो तुम लोग सब? The Simple. Whenever there is a current flowing in the coil 1, there is a induced EM, induced induct self, there is the induced induction produced in the coil 2 is known as your mutual inductance. ऐसे भी कहना है, the inductance in the coil 2 due to the current flowing in the coil 1 is known as your mutual inductance. ठीक है, mutual inductance. known as your mutual inductance. Mutual, हाँ हाँ, आपस में। देखो, the EMF nearby coil when the induction, the second coil is also an induced in the first coil. ऐसे भी हो सकता है, अगर यहाँ पे दो कॉइल है तो देखो ऐसे, यहाँ पे करंट में दिया, यहाँ पे फ्लक्स लिंकेज हुआ, तो यहाँ पे एक इंडक्टेंस होगा, उसको कहेंगे, हाँ यहाँ पे फ्लक्स हुआ 5, तो यहाँ पे तो लिंक हुआ 512, देन देयर विल बी ए म्यूचुअल इंडक्टेंस। यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्टेंस को हम क्या कहेंगे? 5M12। क्या कहेंगे? M कैसे लिंक हुआ? कहाँ से? करंट फ्लो हुआ 1 से और लिंक हुआ 2 को, एंड देयर इज ए म्यूचुअल इंडक्टेंस, दैट म्यूचुअल इंडक्टेंस इज नोन एज योर M कितना? क्या? 1 2। 1 2. मान लो यहाँ पे मैं करंट जा रहा है, तो ये फ्लक्स यहाँ पे प्रोड्यूस होगी, यहीं पे लिंक होगा, तो क्या लिखेंगे हम? M21. M21, 2-1. right? So this is the mutual inductance, right? तो वो म्यूचुअल इंडक्टेंस का हम फिर भी उसका क्या करेंगे? उसका भी हमने कोएफिशिएंट निकालना है। ठीक है, तो वेरी गुड। 15 मिनट अच्छी ହେଲା, ତମେ ଆଉ ଥରେ କହିବ ମତେ, ହେଲା? ଠିକ ଅଛି, तो what is mutual inductance? The inductance produced in the second coil due to the current flowing in the two coil, they are connected electrically or magnetically? Magnetic. Magnetically. Magnetically. Electrically means क्या करना पड़ेगा हमको? Joint करना करना ज्वाइंट करके DC. सेलो टेप लगा देना पड़ेगा। हाँ, नहीं तो सर, ये वायर। हाँ वायर है, तो यहाँ पे मैग्नेटिकली कपलिंग है, तो यहाँ पे हमने कॉइल 1 को दे दिया N1 नंबर ऑफ टर्न, ये कॉइल 2 का नंबर है N2। ठीक है, ओके, N1 and N2, then coefficient of mutual inductance between the two coil is defined as क्या? क्या? Weber turn in one coil due to current in the other coil means क्या लिखूंगा? बोलो मुझे, मैं तुम लोग को ये पूछ रहा हूँ M12। हाँ, तो क्या लिखेंगे? M12 क्या बोला है? मान लो इसका फ्लक्स है 5, ठीक है, और इसका फ्लक्स है 5, ठीक है, और यहाँ पे करंट जा रहा है I1 और यहाँ पे करंट है I2, तो क्या लिखेंगे? कोई बोल सकता है? हाँ, क्या देखो, N5-1. वेबर टर्न Sir, N5 by I. N 5 N. Sorry. हाँ, चिंता करो, थोड़ा थोड़ा Uh, थोड़ा N1-5-1. यस, N1 I1 बाई N1। I1. देखो देखो, I. यहाँ I2. M इज I2. योर, यहाँ पे देखो, देखो क्या है? फ्लक्स किसका लगा? कहाँ पे? Second coil. second. सेकंड कॉइल, तो फ्लक्स I1 linked with N2. N2 N2. due to current flowing in I1. 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 समझ रहे हो? देखो, है कि नहीं? हाँ, यस और नो? अंडरस्टूड? Yes sir. तो इसको लिया हमने, इसको लिख दिया
Huh? M12 means again I am just telling the current flowing in that I1 will produce a flux of I1 and linked with the coil Two. N2. I2, linked with the coil 2. So that's why we have written it is your M12 is equal to हमारा फ्लक्स है phi1 लिंक हुआ N2 को और करंट फ्लो था क्या N1 I1. I1. I1 I1. I1 खत्म। अगर मैं ऐसे पूछूंगा भाई मुझे ऐसे बताओ 2 1 का तो क्या लिखेंगे I2 I N1 by two I2. N one by I2 I2 N1 divided by I2 I2. I N1 two by N I1. one I2. I I2. खत्म हो गया कि नहीं यही है यही है म्यूचुअल इंडक्टेंस ठीक है यस हाँ तो इस तरह से हम म्यूचुअल इंडक्टेंस लिख सकते हैं पहला मेथड है तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम भी दिया हुआ है टू आइडेंटिकल कॉइल दिया है x1 xy दिया है 100 टर्न्स है पैरेलल कनेक्शन हुआ है 80% फ्लक्स प्रोड्यूस कर रहे हैं हाँ 80% फ्लक्स प्रोड्यूस कर रहे हैं इन वन कॉइल with other current there are 5 ampere is flowing in the x of Weber is this find out the mutual inductance between x and y तो हम जानते हैं m is equal to n2 phi1 by I1 तो हमें फ्लक्स चाहिए तो फ्लक्स की वेबर तुमको हमको फ्लक्स मिल गया हाँ कि नहीं तो अभी फ्लक्स लिंकेज विथ y कितना होगा वो बोल रहा है भाई ये जो फ्लक्स लिंकेज हो रहा है कितना परसेंटेज हो रहा है ये कॉइल वन में तो 80%. 80% तो जो इसका जो हमने फ्लक्स निकला था उसका हमने 80% निकाल दिया हाँ फिर हम अभी क्या करेंगे हम अभी फॉर्मूला डाल देंगे m इज इक्वल टू N2 क्या है 1000 और ये फ्लक्स क्या है दिस इज योर फ्लक्स और फिर उसका पढ़ना भी जरूरी नहीं है थोड़ा मतलब फंडामेंटली क्लियर होना चाहिए म्यूचुअल का मतलब क्या है म्यूचुअल का मतलब भाई इस कॉइल में हम करंट भेजेंगे तो यहाँ पे हमारा एक फ्लक्स आएगा करंट भेजेंगे तो यहाँ पे एक फ्लक्स आएगा 5 1 वो फ्लक्स जाके कहाँ पे लिंक करेगा दूसरा कॉइल में उसका है N2 तो हमको M1 चाहे 1 2 चाहिए तो क्या करेंगे हमारा फ्लक्स है 5 1 लिंक हुआ N2 को और किसके वजह से लिंक हुआ करंट I1 के वजह से खत्म कहानी कि नहीं हम्म ऐसे ही दूसरा अगर लाएंगे तो दूसरा टाइप मेरा है M21 क्या होगा M मेरा होगा फ्लक्स 5 2 वो आके लिंक करेगा किसको N1 को और करंट की नहीं खत्म और इसका भी यूनिट है हेनरी क्लियर दिस यूनिट आल्सो नोन एज योर हेनरी ओके so next we'll go for another way to find out second method सेकंड मेथड तो सेकंड मेथड कुछ नहीं है हाँ वेरी गुड सेकंड मेथड इज नथिंग वही ये फॉर्मूला F1 यहाँ पे निकाल दिया ये फॉर्मूला तो हम जानते हैं हाँ क्या 5 1 इज इक्वल टू हाँ 5 1 इज इक्वल टू N2 कॉइल नंबर 2 I1 बाई दिस दिस इज द फॉर्मूला और उसी फॉर्मूला को वो क्या किया है यहाँ पे क्या निकला यहाँ पे हम वही अंदाज से लिखे इस अंदाज से कि लिखेंगे तो हम क्या करेंगे यहाँ पे जो 5 1 है वो यहाँ पे जो क्या I1 था उसको डिवाइड कर दिए तो हमको क्या मिला N1 बाई दिस मच ठीक है हाँ तो अब हम क्या करेंगे हमें इस तरफ से निकालना पड़ेगा तो दोनों साइड में हम क्या करेंगे हाँ क्या करेंगे हमें पाई ये मिल गया हमें ये वैल्यू मिल गया तो हम इस वैल्यू चीज अभी आ गया है तो दिस इज योर यू म्यू जीरो म्यू आर ए N1 एन बाई L इंटू तो दिस इज द वे ऑल्सो यू कैन फाइंड योर म्यूचुअल इंडक्टेंस ठीक है और थर्ड मेथड हमारा
कौन सा मेथड जो था ईएमएफ का, वो मैं मेथड में बोल रहा हूँ, वो मेथड भी सेम, हम उसी को उसी टाइप से लिख के हम जो करते हैं, तो फाइनली क्या आता है, द म्यूचुअल इम्पिडेंस, म्यूचुअल ईएमएफ एम, हाँ, म्यूचुअल ईएमएफ एम इज इक्वल टू नथिंग बट इट इज योर माइनस एम इंटू डी आई बाई डी आई वन बाई डी टी। dt हाँ, क्योंकि I1 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि करंट फ्लो हो रहा है I1, राइट। हाँ, उसी हिसाब से लिखा है, देखो m इज इक्वल टू N251 बाई I1, तो हमने क्या किया यहाँ पे इस हिसाब से लिख दिया, इसको m इंटू I1 इसको लिख दिए, फिर हम तो जो फॉर्मूला जानते हैं दोनों साइड डेरिवेटिव किए, और दोनों डेरिवेटिव किए तो ये हमारा क्या है, दिस इज नोन एज योर E, so E is equal to m minus m di by dt. So this is another way of finding out mutual क्या इंडक्टेंस। inductance इसी के ऊपर बहुत सारा प्रॉब्लम है, और नेक्स्ट हम पढ़ाएंगे तुम लोग को क्लास में कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग। ये कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग मींस वो दोनों जो मैग्नेटिक सर्किट हम लोग को बताया ना, ये मैं कैसे कनेक्ट हुआ है मैग्नेटिकली, तो ये जो कोएफिशिएंट कपलिंग बोल रहा है कि भाई वो कितना स्ट्रॉन्ग जुड़ा हुआ है मैग्नेटिकली, वीक जुड़ा हुआ है कि स्ट्रॉन्ग जुड़ा हुआ है, समझ रहे हो ना। हाँ, यस सर। उसी को हम कहते हैं कितना जोर से जुड़ा हुआ है, उसको कहते हैं कपलिंग। कपलिंग किस तरह का है, मैकेनिकल कपलिंग है, तो जिसमें हम क्या करते हैं, नट बोल्ट लगा के मार देते हैं कि नहीं, हाँ टाइट, तो हो गया Yes, sir. मैकेनिकल। इलेक्ट्रिकल कपलिंग मींस हम वायर को क्या करते हैं, दोनों वायर को ऐसे गुड़ा के उसमें सेलो टेप मार देते हैं, और मैग्नेटिक कपलिंग मींस हम दोनों कॉइल को नजदीक लेके आके रखते हैं, ठीक है। तो these are the things, and today we'll going to put you the attendance for you, and tomorrow you, as you know that you have what, क्या है, quiz test क्विज टेस्ट। Which test? क्विज टेस्ट है 10 मार्क का, और वो तुम लोग मुझे जानते हो तुम लोग कर दोगे, बिकॉज तुम लोग का ऑनलाइन का एक्सपीरियंस कितने साल का है, यू हैव 2 years of 2 साल 2 years of experience है। Excuse me, sir. Hello, हाँ हाँ, sir. टेल मी। सर अगर सर जो वो असाइनमेंट बाद में देने से चलेगा सर? बाद में मींस कब तक, नेक्स्ट ईयर 2023 सर लास्ट डेट? लास्ट डेट आज दे दो, नहीं तो कल दे दो, ठीक है। 2-3 दिन से टाइम लगेगा सर। क्या कहाँ क्यों व्यस्त हो यार, बिजी अदरवाइज, शादी में जा रहे हो क्या, नहीं सर, बाहर थे तुम्हारा सर। शादी नहीं पूछ रहे हैं, तुम फंक्शन में जा रहे हो क्या। नहीं सर, ऐसा नहीं। ठीक है, बहुत जल्दी कंप्लीट कर दो, ठीक है ना। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू। Thank you. And as I discussed that you people have lot of experience in what, online, so I think you will not find any much difficulties in this online subject exam. So and attendance please. So Suprabhat Mandal, Aman Topo, Present, sir. Hashan Raja नहीं है, अरुण कुमार सोरेन, दीपक कुमार, then serial number 1, प्रेजेंट सर। 2, yes sir Aditya 3, Present, sir.